या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रापिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यमाता. With the blessings of Goddess Saraswati, we are here in the 7 days national online workshop on research methodology jointly organized by Government PG College Obra in association with Indian Accounting Association Mirzapur branch. To give a brief lighting and talk more about this workshop, I request Dr. Vikas Kumar sir to bless all the participants and give a brief about this event. Thank you, Shashank. First of all, I welcome all of you. I, Dr. Vikas Kumar, on behalf of Indian Accounting Association, Mirzapur branch and Government PG College Obra Sonbhad, welcome all of you, especially today's inaugural session in 7 days national online workshop on research methodology. Today, our chief guest, Professor Umesh Olani ji and Professor Arindam Gupta ji. I welcome both of you. And the session chaired by Dr. Pramod Kumar ji and Dr. Shailesh Kumar Dwivedi ji. And our core committee member, I also welcome Dr. Saurabh Sen ji, Dr. Deepak Kumar Misra ji, Dr. Amit Verma ji, Dr. Mrityunjay Kumar Pandey ji, Dr. Ram Naresh Yadav ji, and all the life member of Indian Accounting Association Mirzapur branch and all the faculty member of Government PG College Obra. I welcome all the participants and corners Tamil Nadu, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, Jaipur, and in 7 days national online webinar on research methodology, total 220 participants registered, out of which 70% are research scholar and 30% are PG student. The major research scholar and student in the area of commerce and management. Now I focus the theme of the webinar and topic discussion in the next 7 days. Research is a search for knowledge. Research is a movement from unknown to known. It is actually voyage of discovery, creation of new knowledge or extension of existing knowledge. In this workshop, we are trying to develop a research concept in the mind of PG and research scholar. And the area covered in the workshop, research process is starting with formulating of research problem, determination of research design, methods of collection of data and method types of data, analysis of data and interpretation in the next 7 days. Thank you. Over to Shashank. Thank you so much, sir, for this warm welcome to all the participants. Now I request our first chief guest, Professor Umesh Olani, sir. Professor Umesh Olani, sir, is a rector at Jivaji University, Gwalior. Sir has a vast teaching experience of 37 years, and he has remained a lecturer in commerce, Madhav College, Gwalior. He has also remained lecturer in commerce at Jivaji University. He has also remained reader in commerce at Jivaji University, and currently he is a professor in the same university. Yeah, he has a very vast research experience. He has supervised and awarded 54 PhD scholars under him, supervised and awarded 46 MPhil scholars under him, and a very enormous mammoth 260 research paper has been published in the name of self. He has 2 edited books also published, and he had a huge profile of positions held, like former head Department of Distance Education, Jivaji University, former president Indian Accounting Association, former dean, chairman and head faculty of Commerce and Management, Jivaji University, former chief editor at Indian Journal of Accounting, former head Department of Language, Jivaji University, Gwalior. So I request Professor Umesh Olani, sir, to come on the dais and share his experience, share his blessings with all the participants. And I request समय कितना? 15 से 20 मिनट ना? नहीं सर, आप बिल्कुल अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, ताकि मैं तो 1 घंटे भी बोल सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट है
आज के इस कार्यक्रम में, जो कि इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन मिर्जापुर ब्रांच और शासकीय पीजी कॉलेज ओबरा सोनभद्र के संयुक्त तत्वावधान में जो आयोजित किया जा रहा है, मेरे साथ मेरे सहवक्ता प्रोफेसर अरिंदम गुप्ता जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, चेयरमैन शैलेंद्र द्विवेदी जी और अन्य सभी ब्रांच के जितने पदाधिकारीगण हैं और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा अभी विकास ने बताया, और विकास को मैं पिछले लंबे समय से जानता हूं। जब ये पीएचडी कर रहे थे बीएचयू में, मेरा जाना होता था और मैंने इन लोगों के अंदर एक आग देखी थी और उस आग को मैंने मोटिवेट किया कि आप लोग ब्रांच बनाएं और स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस वक्त मिर्जापुर, फैजाबाद और अपने पटना में ब्रांच बनी और ये सभी जो स्कॉलर उस समय थे उन्होंने बड़ी मेहनत की और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम इस 7 डेज वर्कशॉप ऑन रिसर्च मैथोलॉजी का आयोजन इन लोगों ने किया है। रिसर्च, और जैसा भी उन्होंने बताया कि 220 से ऊपर प्रतिभागी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जिसमें 70% लगभग रिसर्च स्कॉलर हैं, बाकी पीजी स्टूडेंट हैं। देखिए, मैं रिसर्च के महत्व को सिर्फ एक शब्दों में बताना चाहूंगा कि आजकल आप अगर फर्स्ट क्लास पीजी चाहेंगे बहुत मिल जाएंगे, नेट जेआरएफ चाहेंगे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके रिसर्च पेपर कितने अच्छे हैं, आपका रिसर्च टॉपिक राष्ट्र और समाज के लिए कितना उपयोगी है, ये एक महत्व रखता है जो आपको अन्य सबसे अलग करेगा। क्योंकि इसमें आप चाहे जितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, इस पे आपका अपना खुद का अधिकार है, सर्वाधिकार आपका है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम रिसर्च मेथोलॉजी को अच्छे से सीख कर अच्छे रिसर्च पेपर, अपने को जो 4-5 साल का समय मिलता है पीएचडी करते हुए, उसमें अच्छे रिसर्च पेपर निकालें और अपना पीएचडी टॉपिक ऐसा बनाएं जिस टॉपिक को चयन करते ही सुनने वाले के मन में एक आकर्षण पैदा हो जाए। बस अगर ये 2 बातें आपने ध्यान रखी तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं शोध के लिए जब भी बात करता हूं तो एक बात कहता हूं कि हर शोधार्थी का त्रिनेत्र होना चाहिए। सामान्यतः हम त्रिनेत्रधारी किसे कहते हैं? भगवान शिव को। और भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम सब जानते हैं कि केवल एक ही काम होता है, विध्वंस। लेकिन शोधार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका तीसरा नेत्र विध्वंस के लिए नहीं, सृजन के लिए होगा, क्योंकि आप कुछ नया करने वाले हैं, कुछ ऐसा देने वाले हैं जो समाज में अभी जानकारी नहीं है, जिस पर समाज और राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है। जब तक ये हम इस प्रकार का विचार अपने मन में नहीं लाएंगे कि मुझे एक ऐसे विषय पर काम करना है जिस विषय पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, और उस विषय पर किया गया काम सदियों तक याद रखा जाएगा और मेरा नाम जो आने वाले शोधार्थी हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोट करेंगे कि फला शोधार्थी ने यह काम किया जो आपके लिए मार्गदर्शन देगा, तब वास्तव में लगता है कि शोध हो रहा है। और यह काम तब हो सकता है जब हम शोध को तपस्या मानेंगे। देखिए, बिना तप के शोध नहीं हो सकता। पीएचडी हो जाएगी। आजकल तो इतना आसान हो गया कि आप इंटरनेट पे बैठ जाएं और आपको जो चाहे सो डेटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो चाहे सो पीएचडी थीसिस लिख देंगे, 150-200 पेज जमा हो जाएंगे, कर देंगे आप, और सामान्यतः थीसिस अप्रूव्ड हो ही जाती है क्योंकि आपके साथ आपके सुपरवाइजर का नाम जुड़ा रहता है। अगर थीसिस रिजेक्ट होगी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके तो 1,50,000 का नुकसान होगा, लेकिन उस सुपरवाइजर के बेचारे की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, बदनामी उसकी होती है। तो सामान्यतः हम लोगों ने कितनी थीसें जांच दी हमें खुद अंदाज नहीं है, 1000 है कि 1500 है, लेकिन आज तक कभी किसी को रिजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उस बेचारे टीचर का दोष नहीं है, सारा दोष आपका है। मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूं। और सच्चाई ये है कि जितने पीएचडी के टॉपिक लिखे जा रहे हैं, थीसिस करी जा रही हैं, उसमें मैं अगर ये कहूं कि केवल 10% थीसिस किसी मतलब की है तो ये भी अतिशयोक्ति है। 10% भी अतिशयोक्ति है।
मतलब खाली एक 5% थीसिस ऐसी आती है जिसमें अंदर खोलकर पढ़ने का मन करता है। बाकी सारे प्रोफेसर थोड़ा सा देख के रिपोर्ट बना देते हैं। मैं अपनी पोल बता रहा हूं आपको, सच्चाई है। क्योंकि पढ़कर सिर पीट लेंगे, अगर पढ़ लेंगे तो रिपोर्ट फेवरेबल नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? हम तपस्या नहीं करना चाहते। अगर कोई महिला कर रही है तो ये देखेगी कि मेरे पति कहां काम करते हैं, उस संस्था पे काम कर लूं। बच्चा काम कर रहा है, मेरे पापा कहां काम करते हैं, उस संस्था पे काम कर लूं। जब तुम इस अप्रोच से काम करोगे तो सुपरवाइजर क्या कहेगा, यार ये थीसिस पढ़ी है, कोई टॉपिक देख ले, ऐसा शहर बदल ले, ये पटना पर काम हुआ है, तू मुजफ्फरपुर पे कर ले, चल तू मिर्जापुर पे कर ले, चल तू फैजाबाद पे कर ले, विषय वही है। अरे साहब मैंने शहर बदल तो दिया। अरे भाई क्या फर्क पड़ना है? क्या मिर्जापुर के व्यक्ति का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका फैजाबाद के व्यक्ति के काम करने के तरीके से अलग है? क्या पटना की संस्थाओं का काम करने का तरीका क्या मुजफ्फरपुर की संस्थाओं के काम करने के तरीके से अलग? नहीं है अलग। मोरलेस पूरे हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर एक जैसा है, समाज की बनावट एक जैसी है। यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं, लेकिन परिवारों का पृष्ठभूमि एक जैसी है, व्यक्ति के विचार एक जैसे हैं, समाज का सोचने का नजरिया लगभग एक जैसा है। आप पूरे उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम तक देखिए, हम लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिले। इसलिए जो निष्कर्ष आप किसी पूर्वोत्तर राज्य में निकालेंगे, वही निष्कर्ष आपके पश्चिमोत्तर राज्य में मिलेंगे, वही निष्कर्ष आपको उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मिलेंगे। इससे कोई देश के लिए, समाज के लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम जिस जमाने की थीसिस को देखते हैं, हम अगर आज से 20 साल पुरानी थीसिस को देखेंगे, 30 साल पुरानी थीसिस को देखेंगे, तो आप स्वयं विचार करिए कि क्या उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय का जो व्यवसाय पर्यावरण था, उस समय का जो कानून व्यवस्था थी, परिवेश था, आर्थिक नीतियां थी, क्या वो आज है? जब वो आज नीतियां ही नहीं है, जब वो आज व्यवसाय परिवेश ही नहीं है, जब कानून सारे बदल गए, हम एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी से लिबरल इकोनॉमी में आ गए, तो फिर उन विषयों पर पुनरावृत्ति करके, फिर से काम करके क्या हासिल होगा हमको? केवल एक ही हासिल होगी कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लिख जाए, दैट्स ऑल। और वो किसी आपकी अलमारी में बंद हो जाएगी, कोई उसको खोल कर देखने वाला नहीं अगले 40 सालों में, क्योंकि समाज के लिए उसकी उपयोगिता शून्य है। तो जब तक एक शोधार्थी समाज में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात नहीं करेगा, राष्ट्र में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात नहीं करेगा, और जब हम जानते हैं कि पूरी दुनिया आज एक कनेक्टेड हो गई है, एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, पूरी दुनिया में होने वाले परिवर्तन हमारे देश में भी होंगे। आप उस परिवर्तन से बच नहीं सकते। तो जब आप उस परिवर्तन से बच नहीं सकते, तो वो क्या परिवर्तन हो रहे हैं जिससे हमारा देश प्रभावित हो रहा है, हमारा समाज प्रभावित हो रहा है, हमारी व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, आप उसको अगर जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका शोध बेकार है। तो हमको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी देखना है, हमको राष्ट्रीय परिवेश को भी देखना है, अपने प्रांतीय और क्षेत्रीय परिवेश को भी देखना है, और उसके उपरांत हमको ऐसे विषय का चयन करना है जिस विषय की आज के संदर्भ में आवश्यकता है। और हर विषय की आज के संदर्भ में आवश्यकता हो सकती है। हम अगर किसी प्राचीन लिटरेचर को उठा लें, और अगर कोई कहता था उनकी आज क्या आवश्यकता है, नहीं, उस प्राचीन लिटरेचर की भी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो देश काल परिस्थितियों से अलग हटकर है, यूनिवर्सल है, सनातन है। तो हमारे आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए प्राचीन ग्रंथों में आज के संदर्भ में कितनी रेलिवेंट बातें कही गई हैं, अगर हम उसको निकाल के समाज के सामने लाते हैं, राष्ट्र के सामने लाते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं, तो कैसे भारत का गौरव स्थापित नहीं होता?
आज हम क्या देखते हैं कि किसी विषय में चले जाएं, हर विषय में हम जब उसके इतिहास में जाने का प्रयास करते हैं तो हमको विदेशी राष्ट्र सामने आते हैं और हम उसका इतिहास विदेशी राष्ट्रों में, विदेशी इतिहास में देखते हैं। क्या हमने कभी अपने भारतीय साहित्य को देखने का प्रयास किया? नहीं किया। आप अगर मनु को उठा ले, आप अगर याज्ञवल्क्य को उठा ले, आप अगर विदुर को उठा ले, आप अगर शुक्र को उठा ले, आप कौटिल्य को उठा ले, ऐसा कोई मेजर विषय नहीं है जिसके रेफरेंस वहां पर आपको नहीं मिले। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब इसको बहुत महत्व देने वाली है, और ये आपने उसमें पढ़ा भी होगा, उसकी प्रस्तावना में पढ़ा होगा कि भारत के प्राचीन गौरव को आज के संदर्भ में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो नीतियां थी वो बहुत सस्टेनेबल थी, बहुत जीवंत थी, लेकिन हमने ही समय के साथ उनको भुला दिया। और जिस प्रकार से हमने विदेशी आयातित नीतियों को अपने विकास का लक्ष्य बनाया, विकास का आधार बनाया, हम वो हासिल नहीं कर पाए जो 75 साल में देश हासिल कर लेता है। इसका बहुत बड़ा दोष हमारा अपना शिक्षा संस्थानों का भी है, हमारे अपने कोर्स करिकुलम का भी है। लेकिन विद्यार्थियों, आपके सामने अनंत संभावना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसीलिए कराया जाता है कि दुनिया में इस क्षेत्र से संबंध में क्या हुआ है वो आपको जानकारी मिले। लेकिन मैं देखता हूं कि मुश्किल से 10% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से 4-6 महीने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जो कम से कम 100 रिव्यू करते हैं। मुश्किल से 10% मिलेंगे आप। और इसलिए अपने थीसिस के जो वेरिएबल होते हैं टॉपिक के, उन वेरिएबल को डिफाइन भी नहीं कर पाते, उन्होंने क्या काम किया उसको बता भी नहीं पाते। तो जो काम पूर्व में हुए हैं, अगर आप उस काम की पृष्ठभूमि में नया काम करेंगे तो आपके काम में हमेशा नकल की संभावना रहेगी। आप उनसे केवल आधार लीजिए। आपका विषय ऐसा हो जिस विषय के साथ कोई मेल ना हो पुराने विषय का, और फिर आप मेहनत करिए। लिटरेचर पढ़ने के बाद आप समाज में जाइए। आजकल देखता हूं ऐसे अधिकांश लोगों को जो इंटरनेट से सारा डेटा ले लेते हैं लेकिन फील्ड में जाने का प्रयास ही नहीं करते। देखिए, हिमालय पर्वत को आप खूब इंटरनेट पे देख लीजिए, सारे टूरिस्ट स्पॉट आप नेट पे देख लीजिए, सब मिल जाएगा, अच्छे अच्छे फोटो मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे वो सब वीडियो आपको बेकार नजर आएंगे। क्योंकि जब तक आप उसको आत्मसात नहीं करेंगे, वहां की हवा को आप नहीं देखेंगे, वहां बैठेंगे नहीं, कुछ घंटे बैठकर आप प्रकृति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, वो आनंद की अनुभूति आपको हृदय में नहीं होगी जो आपको वहां साक्षात बैठकर हो। हम में से कितने गर्मियों में जाके पसीना बहाते हैं, कितने हम ठंडों में मफलर लपेट कर ग्लव्स पहनकर जाते हैं। क्या हम कभी किसी शोध क्षेत्र में गए इस प्रकार से? नहीं गए। जब नहीं गए तो अच्छा शोध हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप से मान संभव ही नहीं है। तो जब तक आप इस प्रकार के शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे, क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगे, आप दुत्कारे नहीं जाएंगे। क्योंकि आप अगर 20 लोगों से मिलेंगे तो 20 में से 10 लोग आपसे बात नहीं करेंगे, भगा देंगे आपको, भगा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपको बात करना तो आएगा, आपको ये तो आएगा कि मैं इनके पास गया, इन्होंने क्यों मना कर दिया। अब समस्या कहां आती है कि मुझे किसी संस्था में डेटा लेने जाना है, मैं पहले कोई रिसोर्स ढूंढ के फोन करवाऊंगा उसको कि सर वो आ रहा है, उसको आप दे दीजिए। तो हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमने फोन पहले ही करा दिया किसी जान पहचान वाले से, वो भी अपना भला काटेगा, अरे अरे विकास दास को ये डाटा दे देना, ये फाइल दे देना, खत्म करो, पढ़ो आगे। उसने बैठ के आपके साथ बात तो करी नहीं है। आप वो डेटा लिया, खुश हो गए, आप उसको रीटाइप कर दिया, छाप दिया, इसी अवार्ड हो। क्या सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा। आप स्वयं जाएं, एक पर्ची में अपना नाम लिखें, अपना परिचय लिखें, रिसर्च स्कॉलर फला यूनिवर्सिटी फला कॉलेज, ये मेरा टॉपिक है, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। आपको बुलाएगा, ज्यादा तो मना कर देगा, आज नहीं कल आ जाना, या कहता आप उनसे मिल लीजिए।
आप जाके अपना परिचय दीजिए कि सर मैं स्कॉलर हूँ और ऐसे हूँ, मेरी पीएचडी चल रही है और विषय पे हम लोग किताबों में ये पढ़ते हैं। लेकिन हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपकी संस्थाओं में क्या ये चीज लागू होती है या आप कुछ अलग हटकर करते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर हमें लगता है कुछ अंतर है तो हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि हम कैसे आपको कुछ मदद कर पाए या आप हमारे को मदद कर पाए, हम अपने ज्ञान को बढ़ा पाए। आप अगर 2 मिनट अपना प्रेजेंटेशन इस प्रकार से देंगे, वो व्यक्ति आपको बैठाएगा, यार लड़का होशियार है, कुछ पढ़कर आया है, कुछ बात करना चाहता है, वो आपसे चर्चा भी करेगा, आपको समय भी देगा और आपको चाय भी पिलाएगा। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, बहुत अच्छा काम होगा आपका। चार लोग मना मना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपको बात करना तो आएगा, आपकी झिझक तो खुलेगी कि व्यक्ति क्यों मुझे मना कर देता है। कभी भी किसी की सिफारिश लेकर किसी के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए मत जाना, कभी स्वयं जाना, ठोकरें खाना, वही तो तपस्या होती है। वो जब बुलाए उसके 5 मिनट पहले पहुंच जाना, 2 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। जब हम इस प्रकार का नेचर अपना बना लेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर पाएंगे। आज हम क्या देखते हैं कि जितने विद्यार्थी पीएचडी कर रहे होते हैं वो अपने टीचर के साथ ही डिस्कशन करने में बहुत घबराते, करते ही नहीं है। खाली अपने सुपरवाइजर से मतलब रखते हैं, लेकिन विभाग के जो दूसरे टीचर हैं वो सामने आए तो नमस्कार चमत्कार की भी आवश्यकता नहीं है उनको। ये अप्रोच हमारा विकास नहीं कर सकती। हमको तो सब तरफ से लेना है, सब तरफ से लेना है। और हमें ऐसे ऐसे लोगों से भी चीजें मिलती हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। अरे आप भले आर्थिक नीतियों पर बात कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि सारी आर्थिक नीतियां पॉलिटिकल लीडर बनाते हैं। आप पॉलिटिकल लीडर से बात तो करिए कि ये क्या नीतियां आप बना रहे हैं, तो आपको उस नीतियों के पीछे क्या पृष्ठभूमि आपको मालूम पड़ेगी कि सरकार उन नीतियों को मजबूरी में बना रही है या किस भाव से बना रही है। हम सोचते हैं नेताओं से क्या काम, ये तो आर्थिक नीतियां बन गई। अरे कोई आर्थिक नीति ऐसी नहीं बनती। आज के समय में कोई भी विषय अपने आप में एकांकी नहीं है, आइसोलेट नहीं है। राजनीति का अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था का समाज पर पूरा प्रभाव पड़ता है। हम कैसा, समाज का क्या संबंध है अर्थव्यवस्था से? कोई संबंध, समाज का बहुत बड़ा संबंध है अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था का दर्शन शास्त्र से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि व्यक्ति की साइकोलॉजी तो वहीं से खराब होती है ना, पैसे के होने या ना होने से, तनाव से। काय के लिए तनाव है? धन नहीं है इसलिए तनाव है, नौकरी नहीं है इसलिए तनाव है। नौकरी क्यों नहीं है? हम सरकार को दोष दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये सारी बातें हैं। और अगर कोई रिसर्चर सोचता है कि मुझे सोशियोलॉजी को जानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कॉमर्स का हूं, मैं तो केवल कॉमर्स देखूंगा, वो गलत सोच रहा है। अपने विषय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ, सभी प्रकार की संस्थाओं के साथ, सभी प्रकार के जो ऑथेंटिक व्यक्ति हैं उनके पास जाकर हमको चर्चा करना चाहिए। आपको इतनी नई नई बातें मालूम पड़ेंगी आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। यही तो तपस्या है। हम किसी संस्था में पीएचडी कर लेते हैं, संस्था से रिकॉर्ड भी ले आते हैं, उसके निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकालने के बाद हम उस संस्था के जो सीईओ हैं, आप उच्च अधिकारी हैं, उनके पास कभी जाते हैं कि साहब हमने आपकी संस्था को लेकर इस टॉपिक पर ये काम किया था और हमने जो डाटा मिले, जो हमें जानकारी मिली, उसके हिसाब से हमारे कुछ प्रमुख निष्कर्ष ये सामने आए हैं, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं 5 मिनट। कभी नहीं, कोई नहीं जाता। मुश्किल तो यही है। और अब जितने निष्कर्ष देते हैं, जितने सुझाव देते हैं, वो सब बेईमानी सिद्ध होते हैं। आप खूब सरकारी संस्थाओं पे शोध कर लीजिए, सब एक ही सुझाव देंगे कि साहब सरकार को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए, बजटरी सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, रोजगार के नए साधन बढ़ाना चाहिए। अरे सरकार तो सब कुछ आउटसोर्स कर रही है, संस्थाओं को बंद कर रही है। आपके सुझाव दिशा में होना चाहिए कि किस तरह से इन संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। सरकार मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे, इन्हें खुलकर काम करने दे, इनको प्रतिस्पर्धी बनने दे, इन्हें आत्मनिर्भर बनने दें। हम उन्हें और गुलाम बनाने के सुझाव दे रहे हैं। नहीं चलेंगे ये चीजें।
इसीलिए आपकी थीसिस बेकार हो जाती है। आप जिस विभाग की थीसिस पे काम करते हैं, क्या उस थीसिस के निष्कर्ष आप संबंधित शासन के विभाग के पास पहुंचाते हैं? आपने मानिए कोई जीएसटी को लेकर काम किया, क्या आपने निष्कर्ष जीएसटी डिपार्टमेंट में भेजे? आपने आयकर को लेकर काम किया, क्या आपने आयकर विभाग को वो निष्कर्ष भेजे? क्या आपने वहां के किसी अधिकारी से चर्चा की? नहीं करते। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं, क्या हम किसी बैंक के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिवीजन के किसी मैनेजर से मिले? हम क्या कुछ संस्था के किसी कंपनी के सीईओ से मिले जो एक्सपोर्ट का काम देखते हैं? तो भाई मेरे ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम कैसे आपको मालूम पड़ेंगी? खाली इंटरनेट से डेटा लेके आपका रिसर्च थोड़ी हो गया भाई, इतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, इतना इंपोर्ट बढ़ गया, इतना फायदा हो गया, ये तो सामान्य लेमैन भी निकाल लेगा। इसने आपने क्या रिसर्च कर दी? तो मैं अपने सारे स्कॉलर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक आप तपस्या नहीं करें, आप ठोकरे नहीं खाएंगे, आप 10 लोगों से दुत्कारे नहीं जाएंगे, लेकिन ढीठ बनकर आप भिड़े रहेंगे, चर्चाएं करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, मिलेंगे, अपनी कठिनाई बताएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनकी कमजोरियां होंगी बताएंगे, उनका पक्ष सुनेंगे और फिर एक सारगर्भित निर्णय लेंगे। तो जब हम देखते हैं कि हम 25-25, 30-30 सजेशन दे देते हैं, 25-25, 30-30 निष्कर्ष निकाल देते हैं, वो सब घट के 4-5 पे आ जाए और वो 4-5 सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो। बड़े अच्छे अच्छे पीएचडी रिसर्च पे काम होते हैं, टॉपिक पे काम होते हैं, क्या कभी हमने अपने काम को लोकल न्यूज़पेपर में छपवाया कि साहब ये काम हुआ है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर हमारे प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पे काम हुआ नगर के, लेकिन हमने नगर निगम के महापौर को भी नहीं बताया कि साहब मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पे। कितनी बड़ी बेवकूफी है। हम वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जो उस अधिकारी को हम बात नहीं कर रहे, महापौर से बात नहीं कर रहे, नगर निगम कमिश्नर से बात नहीं कर रहे। बेकार है हमारा काम करने से। तो जब तक आप उसके गहराई में नहीं उतरेंगे, और ये तभी संभव है जब आप दिल से काम करेंगे, जब आप दिल से पीएचडी करेंगे। आप केवल डिग्री के लिए पीएचडी करेंगे तो आप ये करने वाले ही नहीं है, और आपको बताना बेकार, आपको सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन वास्तव में आप अपने आप का नाम एक इतिहास में लिखना चाहते हैं, आपको ये संतोष होगा कि हाँ मैंने कोई काम किया है। जब ऐसा टॉपिक आप लेंगे और कहीं इंटरव्यू में जाके थीसिस देंगे, साहब पीएचडी, हाँ साहब हो गई, क्या टॉपिक था साहब? ये टॉपिक था। एकदम आदमी अलर्ट हो जाए कि हाँ क्या टॉपिक लिया है, तुरंत आपसे चर्चा करेगा वो। आप उसको अपनी मेथोलॉजी बताएंगे, अपने फाइंडिंग्स बताएंगे, आप देखिए आपके सिलेक्शन की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। और आपने वही कोई घिसा बैठा टॉपिक जिस पर बरसों से काम हो रहे हैं दे दिया, अच्छा ठीक है रख दो, आपके संभावना आधी रह जाएगी, भले आपने कितना भी। तो मैं, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अपना तीसरा नेत्र खोलिए। तीसरा नेत्र इस बात के लिए खोलिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, व्यक्ति के मानस में क्या चल रहा है, इन सबको जानने का प्रयास करिए और अलग हटकर सोचिए। जो सामान्य मानव सोचता है मत सोचिए, विषय की पृष्ठभूमि में जाइए, उसके बैकग्राउंड में जाइए, ऐसा क्यों हुआ उसमें जाइए। जब तक आप कार्य कारण संबंध को नहीं निकालेंगे तब तक आप भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए। और ऐसे विषय का चयन करिए जिसका आज के समय में रेलिवेंस है। और जब तक आप ये ऐसा चयन नहीं करेंगे तब तक आपके विषय पर पीएचडी की बात बेकार है। बाकी और सब बातें आगे जो विभिन्न वक्ता अपनी बात कहेंगे, उन वक्ताओं की बातों के आधार पर आप विषय को समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यह है कि आपको प्रयत्न करना है और ऐसी मेहनत करनी है जो तपस्या कहलाती है। और जब आप तपस्या करेंगे तो उसका लाभ न केवल आपको मिलेगा, न केवल आपके परिवार को मिलेगा, उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा, पूरे राष्ट्र को मिलेगा। और जब तक आपका शोध ग्रंथ समाज को एक दिशा परिवर्तित करने का काम नहीं करेगा, राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम नहीं करेगा, तब तक उस शोध प्रबंध की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में, आज के समय उद्घाटन सत्र में इतना ही पर्याप्त है। मुझे अपनी बात रखने का अवसर जो महाविद्यालय परिवार की ओर से और ब्रांच की ओर से दिया गया,
मैं अपनी ओर से सभी पदाधिकारियों का, महाविद्यालय स्टाफ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छे से बता दिया और आशा है सभी रिसर्च स्कॉलर्स को एक प्रेरणा जरूर मिली होगी। We are heading towards our second chief guest of this workshop, Dr. Arindam Gupta sir. Dr. Arindam Gupta is a professor at the Department of Commerce at Vidyasagar University, Midnapura, West Bengal. He is in postgraduate teaching and research for about 27 years, including about 17 years as professor. He teaches different courses in finance. His current area of interest is public policy. He has successfully completed 4 research projects financed by UGC. He did his doctoral research work in University of Burdwan and postdoctoral research work in Indian Institute of Management, Calcutta. He has so far co-authored 5 books and published 110 articles in national and international journals of repute. He also writes columns in headings, newspapers, economic dailies, and magazines like Indian Express, Business Standard, Hindu Business Line, Telegraph, Frontline, Outlook Money, etc. Among his professional attainments, he is a fellow of Institute of Cost Accountants of India and National Treasurer of Indian Accounting Association. He is also an impaneled assessor with NAC Bangalore. So I request Dr. Arindam sir to come on this stage and turn his mic on. Give his blessing to all parties. Participants are requested to mute. Yes. So good evening, Namaskar, Honorable Professor Umesh Olani, former President of Indian Accounting Association, Principal of Government PG College, Obra, Dr. Pramod Kumar ji, Secretary IA Mirzapur Branch, Dr. Vikas Kumar ji, and Dr. Shailesh Dwivedi ji, who is also involved as chair of today's inaugural program. As I have been told by the organizers that you are going to start this technical program or technical session very shortly, so I won't take much time, and more so because Professor Olani ji has very nicely presented an exhaustive view of research, its need of interlinkage with other associated disciplines, how you should look at literature review, how your research output should serve the purpose of the society, and all these necessary aspects being so nicely touched by him. And I am a fan of his Hindi lecture, and I wish one day will come when I will be also able to speak, not like that of his fluent way of talking in Hindi, but a little I am learning, but I cannot be so fluent, so that's why I prefer to speak in English. But बहुत अच्छा लगता है सर, आप जब भी बोलते हैं हिंदी में इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये है बात। तो now, my dear participants, something I need to address to you. You know, Indian Accounting Association is involved here. Our association is a branch-based organization or association. So Mirzapur is also one of the branches. So we have 57 branches all over the country, and our branches are involved in so many academic activities like this, organizing a research methodology workshop or sometimes organizing webinar. So I make an open invitation to all of you who are involved in now as learner here. Basically, you are learners to join our association, because we need young researchers like you in our association. And I must congratulate on behalf of the parent body of Indian Accounting Association,
being its treasurer, I must congratulate Dr. Vikas Kumar, whom I know for a very long time, being a very active taking this initiative. Not only this one, some days ago, I know he took some other programs also. So anyway, now come to research. You know, it may be a mere coincidence that I was returning today from one board of research study meeting. Just I was driving my way back to my home, and now I am sitting in my home. So that's why the organizers were inquiring whether I will be able to speak. So there today, since there was a corona period, you know, for a long time, these meetings could not be held. So I had to go through almost 18 research proposals for this pre-registration at pre-registration level. And except one or two, none could attract me a little that the research is being presented in a university. University of Burdwan is well known in the country and in our state particularly. It is number 2 after Calcutta University. And in its commerce department, I am an ex-student of that university also. So it has a very, very golden legacy of professors here and there and very renowned alumni it has. But now the quality of research I personally experienced has come down really. Why? Now the question is that when Professor Umesh Holani, teachers like Professor Umesh Holani guided their initial batch of research scholars, this trend was not visible. Actually, when I myself did my PhD, this trend was not visible. But when I started guiding research scholars, for the initial 10 years, I am junior to Professor Holani ji. So that's why there is a time gap. So for the first 10 years, it was okay. But after that, many rules came. Rules like you have to do this and that and that. For assistant professorship, you need to have a PhD. Now for promotion, you need to have API. For research paper, you need to get it published in UGC care list. And all these formalities are being imposed one after another. Actually, we are following the Western model, which is basically not matching to that of ours. And you may have heard that I was fortunately involved in one of the premier institutes of the country, IIM Calcutta, at my postdoctoral level. So I have seen the standard, what standard we could achieve even in our country. So if you want to apply the same standard everywhere, then it won't match. And problem of output will come. And now you see, in our days, we used to spend at least 1 year just for the literature review. You believe or not, it's now nobody will believe that 1 year, 1 साल लग गया आपको literature review करने में. हाँ, हम लोगों को तो 1 साल लगना ही था. और ये सिर्फ नहीं, आप सुन लीजिए, अभी जो करता है हमारा बच्चे जो करता है, वो तो 15 दिन में उन लोगों का सब लिटरेचर रिव्यू हो जाता है. कैसे होता है पता नहीं, गूगल में टाइप करके लिख देते हैं एक टॉपिक, बहुत सारे पेपर्स आ जाते हैं, और क्या करते हैं वो भी देख लीजिए, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको कॉपी करके वो लिख देते हैं. मतलब वो जो समरी होता है ना रिव्यू का, उसका एब्स्ट्रैक्ट से खींच के वो लिख देता है, वो दिखता ही नहीं उसका पेपर का अंदर क्या है. और आप लिटरेचर रिव्यू में ऐसा जो आप मतलब जो चालाकी बोल रहा हूँ, चालाकी करते हैं ना, ये इसका असर आपका रिसर्च का क्वालिटी में पड़ेगा ही पड़ेगा. क्योंकि ये लिटरेचर रिव्यू ऐसा चीज होता है, इससे आपका देखो, आपका इसमें आपका रिसर्च गैप मिलेगा, और रिसर्च गैप से आपका ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव सही होने से आपका हाइपोथेसिस सही होगा. तो ये सब लिंक्ड है.
आप अगर रिसर्च लिटरेचर रिव्यू को आप एडजस्ट करेंगे, आप ऐसे माने मतलब चालाकी करेंगे ना, तो आपका एकदम चेन रिएक्शन होगा आपका आउटपुट में। और उसके बाद क्या होगा, अभी जो कॉर्पोरेट डाटा, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू क्रॉस चेक द डेटा. I started in my research for the first time in my university taking data from the software. It was Capitaline, manufactured and marketed by Capital Market, Mumbai. It is still there in the market. Now there are 3 or 4 other products also there, like Prowess of CMI, like ACE Equity of another Bangalore-based company. So all these databases can supply you tremendous data. I mean, all the corporate research, corporate finance research can be very well done with the help of these databases. But we used to cross-check. Suppose in Capitaline, I could observe some data inconsistency. Like current ratio, I observed 3, and quick ratio, I found dot. And dot means not 0. Dot means not available. Then I called that man, that how is that possible? Your database showing current ratio 3 and quick ratio no figure. How is that possible? Then he told, sir, sometimes गलती होता है, वो जो बंदा कॉपी करता है, ऐसे ही बोले थे, जो बंदा कॉपी करते हैं उसका कॉपी करने में उन लोग क्या करते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट से वो टाइप करके वो जो मतलब जो डेटाबेसेस है उसको अपडेट कर जाते करता है। तो इसलिए जो होता है, ये कॉपी करने का टाइम कभी गलती हो जाता है। तो यही उन्होंने बोला। लेकिन आप अगर कोई जांच पूछ नहीं करेंगे और फिर उसको कॉपी करके लेंगे, क्या हो गया? some fellows are there who will put 0 as quick ratio, but that was a figure which is not obtained as per the research, I mean the database. But you put 0 because you did not inquire what is the figure. You put 0, and 0 is a number. It cannot be 0. If your current ratio is 3, how is your quick ratio 0? So this kind of adjustments we are making. And now come to your research techniques. अरे ये तो अच्छा हुआ था, इकोनॉमिक्स कॉमर्स एक साथ हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स का साथ तो हमारा तो गठबंधन है ही। हम तो ग्रेजुएशन से इकोनॉमिक्स का पार्ट लेते हैं, तो हमका इधर तो इंटरडिसिप्लिनरी काम भी होता है। हम तो ज्यादातर ही फाइनेंस में काम किए हैं, तो इकोनॉमिक्स के तो साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अभी जो हो जाता है ना, अभी रिसर्च स्कॉलर्स जब आते हैं माने सीखने के लिए, तब उन लोग बोल जाते हैं, सर डमी वेरिएबल, सर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सर दिस एनालिसिस, सर दैट एनालिसिस। टुडे इन द मीटिंग आई हर्ड डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। मैंने पूछा, डू यू नो फॉर व्हिच कंसर्न्स दिस इज एप्लीकेबल? नो आंसर। हिज गाइड टोल्ड हिम टू राइट डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस. He put that analysis name in his research synopsis. So this is a place where you will learn the research methodology, which is the heart of जो होता है ना, research methodology जो है वो आत्मा है रिसर्च का, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो आत्मा को आप जानिए, आप आत्मा को ठीक से जानिए। और रिसर्च मेथोडोलॉजी केवल वो टेक्निक्स है नहीं, सिर्फ वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स नहीं है, उसके तो शुरू होता है सैम्पलिंग से। मतलब कैसे आप कंपनीज को चुनेंगे, कैसे आप क्वेश्चनियर बनाएंगे, ये सब। अगर आप प्राइमरी डेटा बेस काम करेंगे तो क्वेश्चनियर बनाना पड़ेगा, तो क्वेश्चनियर के साथ आपको रिलायबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, आपको जो पायलट सर्वे होता है उसको करना पड़ेगा, उससे सुधारना होगा आपका इनिशियल क्वेश्चनियर को फाइनल क्वेश्चनियर बनाने में। तो इसके बाद आपको माने चॉइस करना पड़ेगा ये कहां से आप डेटा चुनेंगे। सर बोल रहे थे, हुलानी जी सर, जो आपने शायद इलाहाबाद में काम किया तो आप मिर्जापुर में काम कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये तो एक पॉपुलर ट्रेंड हो गया। अभी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैंने आज वो मीटिंग में कम से कम 5 सिनॉप्सिस मिला
सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को एक लड़का दिया मैन्युफैक्चरिंग में, एक लड़की दिया मतलब फार्मास्यूटिकल में, ऐसे सारे इंडस्ट्रीज को बांट लिया, सब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बर्धमान यूनिवर्सिटी व्हिच इज regarded as a very good university in my state and maybe in the country. So I should not take any more time. And my dear participant, I am here not to give you any technical lesson. वो जो पाठ आप लेंगे उसके लिए विद्वान व्यक्तियों हैं, उनको तो विकास कुमार जी, शैलेश द्विवेदी जी, इन्होंने तो सब जुड़ा किया इधर. सो विद्वान व्यक्तियों हैं, आप भी विद्वान हैं. आप पाठ लीजिए, ध्यान से पाठ लीजिए. ये जो 7 दिन का पाठ वो आपका काम में आ जाएगा, तो बहुत अच्छा है. सीखने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि लर्निंग इज I mean you can have tremendous satisfaction from learning if you want to learn, but if you try to correlate it with your degree, then सब बेकार हो जाएगा. आप डिग्री का पीछे पड़ जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा. आप सीखो, आप सीखने का टाइम डिग्री मिग्री सबको हटा दो मन से, आप सिर्फ सीखो, वो आपका काम में आ जाएगा. तो सभी को मैं अगेन नमस्कार, मेरा सादर नमन सभी को ये बात सुनने के लिए. नमस्कार. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. You have given a very good and very inspiring speech to all the participants. और सर ये जो AS equity वाली बात है, I can share one of my experience that we were collecting the data for L&T, and AS equity was not showing the correct information that was showing in their annual reports. So I can relate to this. So thank you so much, sir, for your very kind and inspiring words. So now in the same series, I would like to call on the principal and our chief patron of this event, Dr. Pramod Kumar sir, principal, Government PG College, Obra, and I request him to share his words of blessings. सभी को नमस्कार. शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर. जी सर, जी. रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर 7 डेज नेशनल ऑनलाइन वर्कशॉप में आज के इनॉग्रल सेशन में हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर उमेश ओलानी जी, डॉक्टर अरिंदम गुप्ता जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विकास कुमार जी, शैलेश द्विवेदी जी, शशांक जी एवं पूरी टीम और पार्टिसिपेंट्स जो नियर अबाउट 112 हैं, हम सभी को लेकर के ये बड़ा अच्छा पहल है कि ऑनलाइन रूप में ही सही रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर इतना बढ़िया प्रयास जो है विकास जी और शैलेश जी का. निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ओलानी साहब ने बताई हैं और गुप्ता जी ने बताई हैं, उस विषय में बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है. और आज के टाइम में या हम लोग अपने समय से लेकर आज की बात करें तो PhD पब्लिश हो रही हैं थीसिस, लेकिन वो सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या कंक्लूजन है जो हमारे काम का है, बिना निष्कर्ष पर गए कि समाज को क्या मिलने वाला है. धुआंधार PhD हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं. तो बात हो रही है क्वालिटी की, बात हो रही है सोसाइटी को क्या मिल रहा है, बात हो रही है कंक्लूजन की. तो ऐसे समय में जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी साबित होगा. और यह जो ऑनलाइन वर्कशॉप है, जिन उद्देश्यों को लेकर के हमारे साथियों ने जो ऑर्गेनाइज किया है और आगामी 7 दिन चलेगा, और निश्चित रूप से इसकी सफलता होगी ऐसी मैं कामना करता हूं. और ज़्यादा कुछ न करते हुए अपने पूरी टीम को सभी को शुभकामना देते अपनी बात समाप्त करते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद sir. Thank you so much. And with this, we have come to the end of our inaugural session. But before this, I would like to call Dr. Shailesh Dwivedi sir, the core committee member of this event, and he is assistant professor at Guru Ghazi Sahib Vishwavidyalaya, Bilaspur,
and I would like to request him to have the vote of thanks for all our participants and give vote of thanks to the chief guest also. Thank you so much, Sasank, for giving me this opportunity. I am very thankful to our today's chief guest, Professor Umesh Holani. Sir, he is very renowned expert in the field of commerce and management. मुझे याद है कि मैं जब पीएचडी कर रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वाइवा लेने के और बाकी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों की उनसे मुलाकात होती थी। और मैं और विकास सर ने जो अभी होलानी सर ने जो बात बताई कि आप यहाँ से वहाँ जाइए, मिलिए, लोगों से बात करिए, तो उसके संदर्भ में मुझे वो बात याद आ गई कि मैं और विकास सर ने अपने पीएचडी के दौरान कलकत्ता, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज मुंबई, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, बहुत सारे सिटीज में हम लोग घूमते थे, सिर्फ ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि पीएचडी एक्चुअली में होता कैसा है, कैसे पीएचडी किया जाता है। डेटा कलेक्शन के लिए लोगों से वहां जाते थे, लाइब्रेरी में बात करते थे लोगों से कि हमें कुछ आपके पास हो तो, मतलब एक बड़ा वहां से जो हम लोगों को एक्सपीरियंस मिला, मुझे लगता है कि वो सही वही चीज हम लोगों ने जो सीखा लाइफ में, आज हम लोग आप लोगों के सामने वो सारी बातें रख पा रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होता है लाइफ का, जो होलानी सर ने हम लोगों के सामने ये बातें रखी। मैं होलानी सर को और इस बिजी शेड्यूल में आपने इस हम नेशनल 7 डेज नेशनल ऑनलाइन वर्कशॉप में आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द our second chief guest and second speaker of today's session, Professor Arindam Gupta. Professor Arindam Gupta, अभी जैसा शशांक ने उनकी प्रोफाइल पढ़ी है, और प्रोफाइल से ही आप समझ सकते हैं कि उनके कितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं रिसर्च की फील्ड में। मैं खुद भी एक बार उनकी प्रोफाइल देख रहा था ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पे जाकर के, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के, तो मैंने देखा उनके सारी चीजें कि कैसे कैसे उन्होंने रिसर्च वर्क किया है, और उस रिसर्च वर्क के साथ आज वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग के साथ हैं। आई एम फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी दैट आई वाज आल्सो a part of, in a way, I was speaker in a webinar with Arindam Gupta sir, which was conducted by West Bengal, I think South Bengal chapter of the Indian Accounting Association। पर मेरे साथ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बात रख नहीं पाया उस दिन। और I am very thankful to you also, sir, for giving us this opportunity कि आप हमारे बीच में आए और अपनी एक्सपीरियंसेस को, रिसर्च के फील्ड में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम सबके बीच में आपने रखा। मैं आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम में भी जब हम आप सबको याद करेंगे, आप हमारे बीच में जरूर आएंगे। हमारे आज के चेयर ऑफ दिस सेशन डॉक्टर प्रमोद कुमार, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक हफ्ते का समय बहुत ज्यादा होता है, एक आध दिन लोग समय दे देते हैं, वो समझ में आता है, वो भी इवनिंग में जनरली हर आदमी अपना पर्सनल काम करता है, बाहर निकल के कुछ काम करता है, मार्केट जाता है, परिवार के साथ शेड्यूल उनका रहता है, लेकिन ऐसे समय में आपने हम सबके बीच में अपना समय दिया। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम, डॉक्टर मृत्युंजय पांडे, डॉक्टर आशीष पांडे, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर राम नरेश यादव,
डॉक्टर एक नाम भूल रहा हूं मैं, दीपक मिश्रा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन बोले तो इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के इस 7 डेज वर्कशॉप को सक्सेसफुली आपने कंडक्ट कराने में हम सबका सहयोग दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द टुडे convener means coordinator of this program, Mr. Sasank. He is working IIM Raipur as a PhD scholar, and he is very active in the field of research since post graduation. जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तब से हम लोगों के टच में आए और बहुत अच्छे तरीके से वो इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं। और गुप्ता सर ने भी बहुत सारी बताई कि हमने पिछले अभी 2 सालों में ऑनलाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वेबिनार्स वर्कशॉप करवाए, हमने कुछ पिछले साल भी वर्कशॉप करवाए, अभी हमने बजट सेशन, प्री बजट एंड पोस्ट बजट सेशन भी इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन मिर्जापुर ब्रांच ने करवाए। तो कंटिन्यू हम लोग कुछ न कुछ इस तरह के एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो शशांक उस सारे एक्टिविटीज में हम लोगों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में हम लोग अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी इतने बातें से अपनी बात विराम देता हूँ। नाउ Sasank, over to you. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words for me, and thank you for giving this vote of thanks to all of you.